Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Uttar Pradesh. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set I have taken from CAT 25 Slot 1 paper, and the set says a train travels from station A to station E, passing through station B, C, D in that order. The train has a seating capacity of 200. A ticket may be booked from any station to any other station ahead of the route, but not to any other earlier station. A ticket from one station to another reserves one seat on every intermediate segment of the route. For example, a ticket from B to E reserves a seat in the intermediate segment B to C, C to D, and D to E. The occupancy factor for a segment is the total number of seats reserved in the segment as a percentage of the seating capacity. The total number of seats reserved for any segment cannot exceed 200. And कुछ information दिया गया, information भी पढ़ लेते हैं. The following information is on segment C to D had an occupancy factor of 95%. Only B to C had a higher occupancy factor. Exactly 40 tickets were booked from B to C and 30 tickets were booked from B to E. Among the seats reserved on segment D to E, exactly 4/7 were from the station before C. The number of tickets booked from A to C was equal to the number of tickets booked from A to E, and it was higher than the number of tickets booked from B to E. No tickets were booked from A to B and from B to D and D to E. The number of tickets booked from any segment was multiple of 10. Question एक बार पढ़ लेते हैं. What was the occupancy factor for segment D to E? How many tickets were booked from station A to station E? How many tickets were booked from station? How many tickets were booked from station C? What was the difference between the number of tickets booked from station to station C and the number of tickets booked to station D? How many tickets were booked to travel in exactly one segment? ठीक है. क्वेश्चंस देख के क्वेश्चन रीड करके पता चल रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो सॉल्यूशन लार्जली पूरा मिल चुका होगा. ठीक है. अब ये सेट कैसा है? एक राउंड रॉबिन के टेम्पलेट पे बना हुआ सेट दिख रहा है. व्हाई राउंड रॉबिन? बिकॉज़ यहाँ पे राउंड रॉबिन का कांसेप्ट मतलब जहाँ पे आपको ये दिखाई दे कि भाई हर वेरिएबल का आपस में कुछ-कुछ अपने को डिटेल दी गई है. मतलब राउंड रॉबिन का जो टर्म है ना, वो जनरली भी मतलब हम यूज़ करते हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट में. जहाँ पे भी सी की ए का मैच बी के साथ हो रहा है, सी के साथ हो रहा है, डी के साथ हो रहा है, ई के साथ हो रहा है. बी का मैच ए के साथ, सी के साथ, सबके साथ हो रहा है. तो सबका सबके साथ हो रहा होता है, तो वहाँ पे वी यूज़ राउंड रॉबिन और उसका एक स्टैंडर्ड टेबल यूज़ करते हैं, वो कि कुछ ऐसा दिखता है. सेम चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं. ए से बी, ए से सी, ए से डी, ए से ई. ठीक है. अगर आप आईएमएस के एनरोल्ड स्टूडेंट हो, तो आपको मॉड्यूल 2 में एक सिमिलर सेट ऐसा दिखाई देगा, जहाँ पे एक ऐसी चीज़ है, जहाँ पे अपने को आइडेंटिफ़ाई करना है हॉर्स कार्ट वाला सेट. ठीक है. कुछ उसी टेम्पलेट पे ये भी सेट मेरे को दिख रहा था. तो आई स्टार्टेड विद दिस टाइप ऑफ सेट. तो पहले अपने को पता है कि ए से ए वाले तो कोई नहीं है. तो देयर आर पीपल जो ए से बी गए होंगे, सी गए होंगे, डी गए होंगे, ई गए होंगे. ऐसे ही बी से बी वाले कोई नहीं है. ऐसे ही सी से सी वाले कोई नहीं है. डी से डी वाले तक कोई नहीं है. और ई से तो ऑब्वियस सी बात है कोई नहीं होने वाला है. तो मतलब देयर आर पीपल हू आर बुकिंग टिकट फ्रॉम ए टू बी और सी और डी और ई. ठीक है. चलो रीड करना शुरू करते तो थोड़ा क्लियर होगा. द ट्रेन हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 200. तो चलो पहले तो अपने पास 200 की कैपेसिटी दे दी गई है. ठीक. A ticket may be booked from one station, any station to any other station ahead on the route, but ये तो हमने बात कर ली. A ticket from one station to another reserves one seat on every intermediate segment of the route. For example, a ticket booked from B to E reserves a seat in the intermediate segment also. B to C, C to D and D. कह रहे अगर B to E की अगर हमने सीट बुक करी तो that will be counted as कि B to C भी है, B to D भी है और B to E भी है. The occupancy factor for a segment is the total number of seats reserved in the segment as a percentage of the seating capacity. ठीक है. अपने को जो सीट की कैपेसिटी है 200, उसका जो भी परसेंटेज होगा वो माना जाएगा हमारा ऑक्यूपेंसी फैक्टर. द टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड फॉर एनी सेगमेंट कैन नॉट एक्सीड 200. ठीक है. किसी भी सेगमेंट का जो सीट है वो 200 से ज्यादा रिजर्व नहीं कर सकते, बिकॉज 200 है इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी. तो ऑब्वियस सी बात है. सेगमेंट सी टू डी हैड अ कैपेसिटी ऑफ 95%. अच्छा, सी से डी का कैपेसिटी दिया हुआ 95%. 95% मतलब कितना हो गया? 190 हो गया. अब सी से डी वाले कौन है? अगर सोचा जाए तो सी से डी का मतलब ऐसे लोग जो कि ऑब्वियस सी बात है सी से टिकट खरीदे होंगे डी के लिए. ऐसे लोग जो कि बी से टिकट खरीदे होंगे डी के लिए, या बी से टिकट खरीदा होगा ई के लिए, वो भी माने जाएंगे. और ऐसे लोग भी माने जाएंगे जो ए से टिकट खरीदे होंगे डी के लिए, ए से टिकट खरीदा होगा ई के लिए, क्योंकि वो तो वही है ना. बिकॉज ए से डी वाला भी वहां बैठा हुआ है बंदा और ए से ई वाला भी उस पॉइंट पे बैठा हुआ है. ऐसे ही फॉर बी, बी से डी वाला भी है, बी से ई वाला भी है. फॉर सी, वो सी से डी वाला भी है
और सी से ई वाला भी यहाँ पे माना जाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कितना है 190। ठीक है। अपने पॉइंट नंबर 1 ये पढ़ लिया और पॉइंट नंबर 1 का दूसरा हिस्सा कह रहा है ओनली बी टू सी हैड अ हायर ऑक्यूपेंसी फैक्टर। बी से सी का हायर ऑक्यूपेंसी फैक्टर है तो यानी कि 96% सॉरी 95% से ज़्यादा क्या हो सकता है? 96, 97, 98 कुछ ऐसा होना चाहिए था। अब एग्ज़ैक्टली कितना है अभी तो अपने को यहाँ पे नहीं मिला है, थोड़ा और पढ़ते हैं। एग्ज़ैक्टली 40 टिकट्स आर बुक्ड फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी में 40 टिकट्स हैं। ठीक, ये तो अपना साफ-साफ दिख गया एंड 30 टिकट्स आर बुक्ड फ्रॉम बी टू ई। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे ये मिल गया अपने को एक पार्ट मिल चुका है 30। ठीक, अच्छा। Among the seats reserved on segment D2, exactly 4/7 were from station before C. अच्छा, पॉइंट नंबर 2 तो यूज़ हो गया, पॉइंट नंबर 3 थोड़ा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा मैं वेट करता हूँ, आई रिविज़िट दिस स्टेटमेंट, पहले बाकी स्टेटमेंट को कवर करता हूँ। द नंबर ऑफ टिकट बुक फ्रॉम ए टू सी वाज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ टिकट फ्रॉम ए टू ई। अच्छा, ए टू सी वाला जो नंबर है, ये नंबर लेट्स से दिस इज़ ए, वो यहाँ पे भी अपने को मिल रखा है। तो एक तो ये भी मिल गया, तो व्हिच इज़ ए, ठीक है? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 भी हमने यूज़ कर लिया। सॉरी पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 अभी अपन चूज़ करना बाकी है। पॉइंट नंबर 4 आल्सो यूज्ड। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। नो टिकट्स आर बुक्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की 0 टिकट थी, ठीक है। बी टू डी, बी से डी की भी 0 टिकट है, ठीक है। डी टू ई, डी टू ई वाली भी 0 टिकट है, डी टू ई भी 0 टिकट है। अच्छा, तो डी टू ई में नहीं पता, पर बी टू डी पता है तो एक और मिल गया अपने को 0। ठीक है, देखो अभी धीरे-धीरे यहाँ पे एलिमेंट मिलते जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बस हाइलाइट करते चल रहा हूँ। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 आल्सो डन। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि द नंबर ऑफ टिकट बुक फॉर एनी सेगमेंट वाज़ मल्टीपल ऑफ 10। अच्छा, तो यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब कभी भी जो ये है ये 190 जैसे था, तो 190 के अलावा 180, 170, 160, 200 ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, चलो एक बार पॉइंट नंबर 1 पे फिर चलते हैं। कह रहा था कि भाई प फर्स्ट हाफ तो बन गया, सेकंड हाफ क्या कह रहा था? बी से सी का हायर ऑक्यूपेंसी है। हायर ऑक्यूपेंसी मतलब 95% से ज़्यादा है, तो 95% से ज़्यादा और 10 का मल्टीपल तो वो 200 ही हो सकता है। तो बीसी का क्या होने वाला है? 200 होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पे सी और डी का निकाल रखा है, ठीक है? वैसे ही मेरे को बी से सी का भी निकालना होगा। बी से सी में कौन-कौन आएगा पहले ये सोचते हैं। ठीक है, बी से सी में कौन आएगा? ऐसे लोग जो ए पे पूरे होंगे, यानी कि ऐसे लोग जो कि ए से सी की टिकट बुक करी होगी, ऐसे लोग जो ए से डी की टिकट बुक करी होगी, ऐसे लोग जिन्होंने ए से ई की टिकट बुक की होगी वो लोग, ठीक। अच्छा, ऐसे लोग जो बी से सी की टिकट बुक किए होंगे, यानी कि ये। तो ये कितने लोग हो जाएँगे? ये हो जाएँगे तुम्हारा 40, ठीक है, बी से सी वाले और और कोई तो अपने पास नहीं होगा। 40 प्लस ये वाला पार्ट, ये तीनों वाला पार्ट, ठीक है? ए से सी, ए से डी और ये, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, तो ये कितना बन जाएगा? 2a प्लस एडी प्लस 40 इज़ इक्वल्स टू 200, यानी कि 2a प्लस एडी इज़ इक्वल्स टू 160। तो यहाँ से या तो ए मिल जाए तो एडी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ये वैल्यू, या एडी मिल जाए तो दोनों ए की वैल्यू मिल सकती है। ऐसा कुछ यहाँ पे अपने को एक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। ठीक। पॉइंट नंबर 3, बाकी इस पे दिमाग लगाते हैं। पॉइंट नंबर 3 कह रहा था अमंग द सीट रिजर्व फ्रॉम डी टू ई, डी से ई में जितनी सीट रिजर्व हुई थी, डी से ई वाली, तो डी और ई से लेके कुछ अपने को दे नहीं रखा है। डी और ई के बारे में दिया हुआ है कि वो जो नंबर है, उसमें से जो 4/7 का नंबर है, वो यहाँ पे था। 4/7 का मतलब ये जो नंबर है, ये मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, तभी वो इंटीजर में डिवाइड हुआ होगा, मतलब सब कटा होगा और मल्टीपल ऑफ 10 भी होना चाहिए, अगर थोड़ा-सा ध्यान दो तो। ये पार्ट और ये पार्ट को अगर सोचो, तो ये जो डी वाला नंबर है, वो क्या हो सकता है? वो 2 हो सकता है। वो या एक तो मल्टीपल ऑफ 7 भी होगा, तभी वो डिवाइड होगा और मल्टीपल ऑफ 10 भी होगा, यानी कि वो इवेंचुअली मल्टीपल ऑफ 70 होना चाहिए। अब मल्टीपल ऑफ 70 में क्या होना चाहिए? जो है मतलब ये पार्ट जो है, ये सी से आ रहा है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। ठीक है? मैं मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन ऐसा थोड़ा लिख लेते हैं। थोड़ा इसको मैं साफ लिख दूँगा तो तुम्हारे लिए ईज़ी रहेगा।
मैं मान लेता हूँ कि डीई में टोटल एक्स लोग थे, मतलब वो उस वाले सेगमेंट में, तो वो 4/7 ऑफ एक्स निकालना है, जो कि सी से पहले आया होगा। सी से पहले आने का मतलब वो ए और बी से आया होगा, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है? मतलब वो एडी वाला पार्ट होगा और बीडी वाला पार्ट होगा, वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। 4/7 क्या होगा, ज़रा ये सोचते हैं। 4/7 का मतलब ये जो x का नंबर है, क्योंकि ये इंटीजर आ रहा है, तो ये मल्टीपल ऑफ 7 होगा और मल्टीपल ऑफ 10 भी होगा, क्योंकि मैंने ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करा है। तो वो मल्टीपल ऑफ 70 हो सकता है, तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 70 हो सकती है, 140 हो सकती है, 210 नहीं हो सकती, क्योंकि 210 लोगे तो यहाँ पे ये सीन क्रिएट कर देगा। तो यानी कि 70 और 140 में से कोई एक होना चाहिए। अगर ये 70 है, तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये क्या हो सकती है? 40, और ये हो जाएगी तुम्हारी कितनी? 80। ठीक। अब ये वैल्यू एग्ज़ैक्टली है क्या? ये देखते हैं। जो ये बिफोर सी वाली वैल्यू है, उस स्टेटमेंट को थोड़ा दोबारा पढ़ते हैं और उसको यूज़ करते हैं। ठीक है? कह रहा है अमंग द सीट्स रिजर्व्ड ऑन अ सेगमेंट डी टू ई एग्ज़ैक्टली 4/7 वर फ्रॉम स्टेशन बिफोर सी। जो डी से ई की जो ये वाला पार्ट था, डी से ई वाला पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट का जितना सीट बुक था, उसमें से सी से पहले वाले 4/7 थे, 4/7 थे। सी से पहले वाले मतलब ऐसे लोग जो ए से चढ़े होंगे, पहला, ठीक है? तो मतलब ए से चढ़ने वाले कितने लोग रहे होंगे? और डी टू ई, यानी कि ऐसे लोग जो कि ए से ई ले लेते हैं, ठीक? एक, ऐसे लोग जो बी से ई चढ़े होंगे। आई होप दिस इज़ करेक्ट। अच्छा, अब ये दोनों का जो नंबर दिया हुआ है अपने को, थोड़ा ये देखना। ये दोनों का जो नंबर है, ये नंबर का जो सम है, ये क्या या तो 40 होगा या तो 80 होगा, ऐसा कहना चाह रहा है। अब ज़रा समझना, एई और बीई में से 30 गिवन है और ए गिवन है, ठीक है? अच्छा, हमने एक पॉइंट 3 है, इसको पूरा पढ़ा है। अमंग द सीट्स रिजर्व्ड ये। पॉइंट नंबर 4 है, जिसको मैंने पढ़ते समय आधा पढ़ा था, बट आधा पार्ट रह गया। क्या लिखा था? द नंबर ऑफ सीट्स वाज़ ए टू सी एंड ए टू इज़ इट वाज़ इक्वल एंड इट वाज़ हायर देन बी टू ई। ये जो ए की वैल्यू है ना, ये लिखा था कि ये 30 से ज़्यादा है। ठीक है? अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दो। एई की वैल्यू और बीई की वैल्यू। एई की वैल्यू 30 से ज़्यादा है, मल्टीपल ऑफ 10 है, एक तो ये पता है, दूसरा बीई की वैल्यू 30 है, तो यानी कि कौन-सा केस लेना पड़ेगा? यही लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं 40 लेता हूँ, तो मतलब एई की वैल्यू क्या आ जाएगी उस केस में? 10, व्हिच इज़ प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि वो इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? इन दोनों का सम होना चाहिए था कितना? 80। सो बाय दैट लॉजिक एई मिल जाएगा अपने को कितना? वो मिल जाएगा 50। यानी कि ये मिल गया आपको 50। अगर ये 50 मिल गया तो ये भी 50 मिल गया। ठीक। अगर ये दोनों 50 मिल गया, अब यहाँ पे ध्यान देना। सॉरी। अगर ये दोनों 50 मिल गया, तो अभी आपको बाकी वैल्यूज़ भी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? चलिए, अपन यहाँ पे आ गए, ये मिल गया आपको 50, ठीक है। अच्छा, ये 50 मिलने का मतलब जो डीई का सेगमेंट है वो कितना होना चाहिए था? 140 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ से जो पार्ट है वो 140 होना चाहिए था। अब वो 140 कैसे हुआ होगा ये देखते हैं। 50, 30 और इधर से होना चाहिए था। बिकॉज़ डीई में तो साफ-साफ दिख रहा है ना, ऐसे लोग जो ए से ई पे आए होंगे, ये वाले कौन होंगे? डीई वाले। ऐसे लोग जो ए से ई पे आए होंगे, बी से ई पे आए होंगे और डी से ई पे आए होंगे। तो वो कितने लोग हो जाएँगे? वो 140 होंगे। तो यानी कि कितना होना चाहिए था यहाँ पे? 60 होना चाहिए था। तो ये भी आपको यहाँ पे मिल गया। सो एक स्टेटमेंट पॉइंट नंबर 3 यूज़ करके मैंने इतनी चीज़ों को निकाल दिया। ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास क्या बच रहा है? ए से डी निकालना बच रहा है और सी से डी निकालना बच रहा है। ठीक है? इसमें से कुछ मिल गया अपने को, यहाँ पे ध्यान दें। देखो अब मेरे को ए और ई की वैल्यू मिल चुकी है, व्हिच इज़ 50। ठीक है? अब ना यहाँ पे देखो मैं इक्वेशन बना देता हूँ। मेरे को सी से ई मिल गया, व्हिच इज़ अ, 60, 30, 50। ठीक है? यानी कि पूरा ले लेता हूँ ना 140। तो डायरेक्ट 140, ये देखो ना 1, 2 और 3, इसको ले लूँ तो ये पूरा बन जाता है 140। ठीक है? प्लस सीडी अपने को निकालना बाकी है और एडी निकालना बाकी है। अभी भी ये दोनों पार्ट निकालना बाकी है और बीडी तो 0 ही है। तो यानी कि ये दोनों का जो नंबर है ये कितना है? 50 के आता है। ठीक है? यानी कि एडी प्लस सीडी इज़ इक्वल टू नथिंग बट 50। ठीक है? एक इक्वेशन से अपने को ये निकल सकता है। अच्छा,
अपने को क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन एक बार देखें, ऐसा तो नहीं इतने से ही काम बन जाएगा। एक बार क्वेश्चन पे नजर मार लेते, क्वेश्चन में बन गया व्हाट वाज द ऑक्यूपेंसी फैक्टर ऑफ सेगमेंट डी टू ई। यार ये तो कितना अभी हमने निकाला था ना, ये कितना है 140 है, यानी कि 200 का। ये देखो ये तो मिल गया, ये तो अपना ऑप्शन ए सही मिल रहा है। ठीक है, हाउ मेनी टिकट्स वर बुक फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन ई, स्टेशन ए से स्टेशन ई, ये भी मिल गया 50। हाउ मेनी टिकट्स वर बुक फ्रॉम स्टेशन सी, स्टेशन सी से कितनी बुक करी गई है 60, और ये नहीं पता तो भी ये निकालना बाकी है। ठीक है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टिकट बुक्ड टू स्टेशन सी एंड द नंबर ऑफ स्टेशन एंड द नंबर ऑफ टिकट्स बुक टू स्टेशन डी, स्टेशन डी वाली यार ये वैल्यू निकालना बाकी है, तो मतलब मेरे को ये दो वैल्यू चाहिए होगी, ये मेरे को अभी ये लगता है ये वाले क्वेश्चन से मिल जाएगी। ठीक है, एक बार बस लास्ट पढ़ लेते क्वेश्चन, हाउ मेनी टिकट्स आर बुक फॉर टू ट्रैवल इन एग्जैक्टली वन सेगमेंट। तो 0, 40 ये नंबर फिर भी मेरे को चाहिए होगा। ठीक है, तो लेट्स वर्क ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस, कि मेरे को ये वैल्यू निकालूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, जो कि मेरे को लगता है इस वाली इक्वेशन से होना चाहिए था। ठीक है, बिकॉज ये इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है AD प्लस CD इज इक्वल टू 50, तो वहां से कुछ निकल सकता है। ठीक है, कहाँ पे थे अपन? हाँ, ये वाले क्वेश्चन पे। एक बार ये वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देन विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। सेगमेंट CD हैड अ 95% एंड B2C हैड अ हायर ऑक्यूपेंसी। तो मैंने यहाँ पे 200 ले लिया था B2C का। B2C में क्या आने वाला था, B से C वाले वो लोग होंगे जो कि A से C जा रहे हैं। ठीक है, लिख दिया विच इज 50। ठीक है, A से D जा रहे हैं विच आई नीड टू आइडेंटिफाई। ठीक है, और अ, और A से E जा रहे हैं, अगेन वो भी 50। ये हो गया। अच्छा, अ, B से C जाने वाले कितने लोग हैं? 40। ठीक है, और B से D जाने वाले 0। ठीक है, और B से E जाने वाले कितने हैं? 30। देखो मैंने यहाँ पे यार ये वाला पार्ट ना थोड़ा मिस करा था। अभी ये देखो यहाँ पे दिखा, मैंने जब ये इक्वेशन बनाया था, ये इक्वेशन गलत बना हुआ है। ठीक है, बिकॉज़ बी से सी वाला निकालना था, तो मैंने यहाँ पे अधूरा निकाला था। ठीक है, तो बी से सी वाले कौन होंगे? ऐसे लोग जो ए से सी आए होंगे, और ए से डी, ए से ई वाले थे, ऐसे ही ऐसे लोग जो बी से सी वाले थे, बी से सी वाले थे, बी से डी वाले थे, और बी से ई वाले थे। ठीक है, तो कितने हो गए ये? अ, ये पार्ट हो गया 50, 50, 100, 140 और 170। यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 30 होना चाहिए था। तो ये बन जाता आपका पूरा 200 वाला नंबर। ठीक है, अगर अपने को यहाँ पे AD मिल चुका है तो CD भी मिल जाएगा, वो कितना होना चाहिए था? 20। ठीक है, तो यहाँ से अपने को ये पार्ट भी क्लियरली मिल गया। ठीक है, ये तो बड़ा आसान था पार्ट निकालना। क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन अपने को क्या-क्या मिल चुका है? क्वेश्चन नंबर 1 मिल चुका था, क्वेश्चन नंबर 2 मिल चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी टिकट्स आर बुक फ्रॉम स्टेशन सी, स्टेशन सी से कितनी बुक करी गई थी? 80। What was the difference? What is the difference between the number of ticket booked to station C and the number of ticket booked to station D? स्टेशन सी को कितनी करी गई थी? यहाँ पे 90, और यहाँ पे कितनी है? 50। तो कितनी है टोटल? इसका डिफरेंस आ गया 40 का। ठीक है, फिर से देख लेता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टिकट बुक्ड टू स्टेशन सी एंड द नंबर ऑफ टिकट बुक्ड टू स्टेशन डी। ठीक है, हाउ मेनी टिकट्स आर बुक्ड टू ट्रैवल फ्रॉम ओनली वन सेगमेंट। तो वो कितना है? 0, 40, 20, 60 होना चाहिए, तो यानी कि इसका आंसर होना चाहिए 60। ठीक है, मॉडरेट से डिफिकल्ट वाला सेट, मतलब पेपर वाले फेज में थोड़ा निकालना ये टफ होता है। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।